आसनसोल के एकमात्र 4 स्टार होटल द ग्रैंड में रविवार की सुबह एक बड़ी आगजनी की घटना होते होते रह गई, क्योंकि समय रहते दमकल विभाग के कर्मचारियों ने तत्परता से काम किया और होटल के स्टाफ ने भी आग पर काबू पाने की काफ़ी मशक्कत की। हालांकि 6 फ्लोर वाले द ग्रैंड होटल के चौथे फ्लोर पर स्थित केवल एक कमरे में आग लगी थी। इस आग की वजह से उस कमरे को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बगल के कमरों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस कमरे में आग लगी थी उसकी वजह से पूरे चौथे तल और ऊपर के तलों में धुआं भर गया था। धुएं की वजह से चौथे फ्लोर पर लोगों को अपनी जान बचाने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि वे लोग सुरक्षित बाहर निकल आए थे। होटल में आग सुबह करीब 8:15 बजे लगी थी, जिस समय काफ़ी लोग सो रहे थे या फिर आराम की मुद्रा में थे, लेकिन आग की आहट से होटल में रुके अतिथियों में हड़कंप मच गया। यहाँ कई लोग सिंगल के तौर पर रुके थे तो कई परिवार वाले भी थे। वे लोग होटल के बाहर आकर काफ़ी देर तक बैठे रहे, जब तक कि आग पर काबू नहीं पा लिया गया। द ग्रैंड के चौथे फ्लोर के जिस कमरे में आग लगी थी, ठीक उसके 2 कमरे बाद ही कोलकाता से आए उदय देववर्मन भी रुके थे। वे अक्सर कंपनी टूर पर आसनसोल आते हैं तो इसी होटल में रुकते हैं। उन्होंने बताया कि आग लगने की वजह से चौथे फ्लोर पर धुआं भर गया था। किसी तरह वे लोग यहाँ से निकल पाए। 8:30-9টা নাগাদ আমরা রুমের মধ্যে শুয়েছিলাম। হঠাৎ করে প্রচুর হঠাৎ করে একটা সাফোকেটেড সিচুয়েশন ছিল। অলরেডি ফ্লোর খোলার আমরা ভেতরেই ছিলাম, রেডি হচ্ছিলাম আমাদের মিটিংয়ে বেরোবো বলে। ফ্লোর খোলার টাইমে হঠাৎ করে দেখি পুরো ফ্লোর একদম কালো ধোঁয়ায় ভরে গেছে, প্রচণ্ড হিট বেরোচ্ছে। ফ্লোরে আমরা 3-4 জন ছিলাম, আর যারা হাউসকিপার ছিল তারা ছিল। এতটাই কন্ডিশন খারাপ ছিল যে ওখান থেকে বেরোনো যাচ্ছে, তাও আমরা হামাগুড়ি দিয়ে কোনো রকমে আমরা ওখান থেকে বেরোই। বাট এভরিথিং ইজ ওভার কন্ট্রোল এবং প্রত্যেকটা স্টাফ এবং দমকল ফ্যান্টাস্টিক কাজ করেছে। একটা রুম পুরোটাই ডিস্ট্রয়েড হয়ে গেছে, রুম নম্বর 40011 4011, ওটা পুরোটাই ডিস্ট্রয়েড হয়ে গেছে। যেটুকুনি শুনলাম সেটা হচ্ছে যে ওখানে ফ্রিজের মধ্যে শর্ট সার্কিট হয়েছিল। মিসকমিউনিকেশনের ফলে তো জল টল দেওয়া হয়েছিল, বা উনি ভয়ে হয়তো লক করে বেরিয়ে গেছিলেন, যার ফলে আর আগুনটা নেবে। আগুনের ফ্লেমটা ধীরে 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 বাড়তে থাকে। এমন একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় যে টোটাল ফ্লোরটার সব জানলা বন্ধ ছিল, যার ফলে আরও পরিস্থিতিটা আগুনটা আরও বাড়তে শুরু করে। দমকল অন টাইমে আসে, আমরাও বেরিয়ে আছি, সবাই মিলে এখন সব নর্মাল আছে। আপনি কোথা থেকে আসছিলেন? আমি কলকাতা থেকে। কত নম্বরে হয়েছিলেন আপনি? আমি 4006। পাশের রুমে হয়েছিল? পাশে দুটো পাশের রুমে হয়েছিল, ওটা হয়েছিল 9-10-10-11। আগুনে ফায়ার ফাইটিং যে সিস্টেম হয় একটি হোটেলের নিজস্ব। দেখুন, আমি একটা কথা বলি, এটা এত বড় হোটেলের ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম সবসময় ঠিকই থাকে। আমি কখনো আমি এখানে দীর্ঘদিন ধরে আসি আমার অফিসিয়াল কাজের জন্য। সত্যি কথা বলতে গেলে যে রুমের যা ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ছিল, টোটাল সিস্টেমটাই তো তখন শাটডাউন করে দেওয়া হয়েছিল। তো পাম্পের জলটা উঠবে কোথা থেকে, এটাও তো আপনাকে বুঝতে হবে। টেকনিক্যাল জানেন, শুধু তো মানুষের গলতি বললে হবে না। টেকনিক্যাল দিক থেকে ওনারা চেষ্টা করেছেন, এবং হোটেলের ওনার এবং প্রত্যেকটা যারা স্টাফ প্রত্যেকে প্রচণ্ড কম্পোজিট করেছে। সবাইকে ঠিকমতো সরানো হয়েছে, এখন একদম নর্মাল। হ্যাঁ, তবে একটা ফ্লোর পুরোটাই কোলাপসড প্রায়। এখন কি বেরিয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমাদের আজকে চেক আউট ছিলই অলরেডি, কিন্তু আমরা একটু ফ্রেশ হবো অন্য রুমে গিয়ে। তো এখন আমরা সবাই ঠিক আছি, এবং সব দমকল ফাটাফাটি কাজ করেছে, হোটেল স্টাফ প্রত্যেকে ঠিকঠাক এক্সিকিউট করেছে। बहरहाल न सिर्फ उदय देववर्मन बल्कि होटल के मालिक अमरजीत सिंह भरारा भी यह कहते हैं कि दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बढ़िया और तेज़ी से काम किया। हालांकि ये इस बात से इनकार करते हैं कि होटल में किसी तरह का आग से निपटने में कमी है। वे यह तो नहीं बताते कि आग कैसे लगी, लेकिन उनका मानना है कि जिस रूम में आग लगी थी उसके गेस्ट कोई बिजली का उपकरण उपयोग कर रहा होगा, जिससे आग लगी होगी। जो मेन किसी भी जगह में कोई फायर हो, उसमें जान माल का क्षति होता है, तो आदमी को सबसे ज़्यादा तकलीफ उस चीज़ का होता है। शायद ऊपर वाले का हाथ था, इसीलिए सिर्फ एक रूम में, एक पर्टिकुलर रूम में, चौथा फ्लोर में 4014 हाँ, उसमें लगा है, जो एक स्मॉल साइज़ का रूम था। अब कारण क्या है फायर का, देखिए, क्योंकि वो कहीं भी और नहीं लगा, सिर्फ एक ही रूम में लगा है। फायर डिपार्टमेंट वाले लोग भी चेक करेंगे कि कारण क्या है इसका। लेकिन नॉर्मली जो होता है, ये कोई ना कोई शायद इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है। अब हमको ये नहीं पता, जब तक वो असेस करेंगे हम आपको 3 चीज़ बता सकते हैं कि सिर्फ एक रूम में फायर हुआ है, और वो फायर पूरा कंट्रोल में आ गया जल्द से जल्द। बहुत धन्यवाद करते हैं हम फायर डिपार्टमेंट का, उन्होंने बहुत क्विक उसको कंट्रोल करके बंद कर दिया।
और तीसरा बात देखिए कि उसका एक्चुअल रीज़न क्या है, क्योंकि किसी भी दूसरे रूम में उसका कनेक्टिविटी नहीं हुआ फायर। अब उसमें उस पर्टिकुलर रूम में कोई गैजेट ऐसा यूज़ हो रहा था या कुछ ऐसा हो रहा था, उसका नॉलेज हमको नहीं है। वो जैसे पता चलेगा आपको भी हम बता देंगे, हमको जैसे इसका रीज़न। फायर एक्सटिंग्विशर जो रहना चाहिए होटल में, वो क्या काम किया? हमारे होटल में अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर का नॉलेज रखते हैं एक्सटिंग्विशर का, तो हमारा टॉप ऑफ द लाइन अरेंजमेंट है। आप खुद इंस्पेक्ट करिए जाके। इस एरिया में हमारा वन ऑफ द बेस्ट फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। लेकिन और वो अपना काम खुद ऑटोमेशन में करता है, उसमें जाके हमको कोई बटन नहीं दबाना होता। अगर स्मोक डिटेक्ट होता है तो स्प्रिंकलर चालू हो जाता है। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि जिस केबल से पावर जाता है, क्योंकि हर चीज़ तो पावर से कनेक्टेड है, वो पावर का केबल बस्ट हो जाए तो फिर वो स्प्रिंकलर बंद हो जाता है। फिर फायर डिपार्टमेंट का हेल्प करता है। इस बार क्या स्प्रिंकलर चालू नहीं हुआ? हाँ, स्प्रिंकलर चालू हो गया था, बट उस रूम में स्प्रिंकलर के जो कनेक्शन आ रहे थे, देखिए हर चीज़ एक वायर से कनेक्टेड है। आपका मोबाइल वायर से कनेक्टेड है, आपका फ़ोन वायर से कनेक्टेड। वो वायर जो मैं समझ रहा हूँ कि शायद वो वायर में कनेक्शन का प्रॉब्लम आ गया, तो वो जितना पानी फेंक सका फेंका, बैलेंस जो पानी की दरकार पड़ा वो फायर डिपार्टमेंट ने आके दिया। बहुत सारे आग नहीं फैला, लेकिन बहुत सारे धुआं का एक पैनिक हो गया था, वो उसके बारे में। देखिए आप अक्सर जानते हैं, बड़ी पुरानी कहावत है, आग कम लगी होती है धुआं ज़्यादा फैल जाता है। तो हमारे केस में भी वही हुआ है, और इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं, इट्स ओपन थिंग। आप भी बात कर सकते हैं फायर वालों से। एक रूम में हुआ है, जस्ट वन, जहाँ पे एक गेस्ट थे। अब और ये किसी भी और रूम में फैला नहीं। किसी कोई इंजर्ड नहीं है? नहीं, ना मेरा कोई स्टाफ इंजर्ड है, ना मेरा कोई गेस्ट इंजर्ड। अभी सब सेफ है? हाँ हाँ, इसमें लकीली देखिए लगभग कितना न्यूज़ अलग चीज़ है, फायर अलग चीज़ है। कोई सबसे पहले ओनर ये चाहता है कि किसी को हर्ट ना हो। सालों बाद आसनसोल में किसी बड़े होटल में आग लगने की यह पहली घटना है। यहां आपको बता दें कि उषाग्राम स्थित द ग्रैंड होटल आसनसोल का सबसे ऊंची बिल्डिंग वाला होटल है और आसनसोल में एकमात्र 4 स्टार होटल है। बहरहाल आग से किसी जान माल की हानि नहीं होने पर इसके मालिक ने राहत की सांस ली है। होटल में ठहरे अतिथियों ने भी राहत की सांस ली। एक ऊंची बिल्डिंग में आग लगने की घटना में आसनसोल दमकल विभाग का भी आग से निपटने की तैयारियों का एसिड टेस्ट हुआ, जिसमें वह पास हो गया। गौरतलब है कि अभी हाल में धनबाद के एक बहुमंजिले अपार्टमेंट में आग लगी थी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी।